This is our project whom we have named as off-grid solar battery hybrid eco-electric air conditioner. Now I am going to explain its components that we have used in this project. Firstly, this is the temperature modeling control system of this whole project. Now here this is the PCB board. These 1, 2 and 3 are the LED indicators of this system. This LED is attached for the solar light. It indicates that solar light is coming or not. Secondly, this is the 16:2 LCD display in which it will show that set point temperature, which we have set with the help of these two buttons. These two buttons are for the increase of the set point temperature. This is for the decrease for the set point temperature, and set point temperature will be shown here, as well as the room temperature will also be shown here. And this is the Arduino of this system. Here we have done the coding for the Arduino. Now secondly, this is the battery we have attached here that gives life to this whole system. Here the temperature which is shown in the LCD display is being shown with the help of this ICLM35 temperature sensors. It senses the room temperature and it gives this signal to this system, and the temperature can be shown here, can be seen here. Whenever the temperature, the room temperature is above the set point temperature, let's say if we have set the temperature of 30 degrees Celsius, and if the room temperature is 31, even if the 31 or 32, this system will automatically turn on whenever the room temperature increases. Now this is the one part of this whole project. I will explain the other components. Here these two are the fans which we have placed horizontally. The reason why we have placed these fans horizontally is because so that the air which is coming from these fans can be passed through these terracotta pipes. These are the terracotta pipes that we have attached here. Now, why we have attached the terracotta pipes is because due to their best evaporation effect, or we can say the cooling effect of the terracotta pipes are good enough as compared to any other pipes. Secondly, whenever the water will come from here through this pipe, and it is the inlet of the water and it is the outlet of the water. Excess of the water can be drained out from here, and here it is the inlet. The water will come from here. Actually the thing is कि जब हमने ये इनलेट लगाया था तो ये जो पानी है ये यहाँ नीचे जा रहा था, पूरा का पूरा पानी, और ये यहीं तक सबसे पहले ये चीज़ होती थी, ये चीज़ भीगते थे, फिर उसके बाद ऊपर पानी चढ़ ही नहीं पाता था। तो हमने इस पूरे सिस्टम में एक उल्टी चीज़ करी है। हमने नीचे वाले जो टेराकोटा पाइप्स के अंदर होल्स हैं, जो पीवीसी पाइप्स में अंदर होल्स हैं, उनको हल्का खोला है, ज़्यादा नहीं, एज बिकॉज ताकि पानी यहाँ आए, यहाँ चढ़े। पहले सबसे पहले जब यहाँ चढ़ेगा तो थ्रू दीज होल्स, जो हमने यहाँ होल्स किए हैं, इससे पानी बाहर निकलेगा और ये पूरे टेराकोटा पाइप्स गीले हो जाएंगे, और जो एक्सेस ऑफ वाटर होगा इन टेराकोटा पाइप्स में वो नीचे ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता रहेगा ताकि बाकी सारे टेराकोटा पाइप्स गीले होते रहें। ऐसे करके ये कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, और उस कूलिंग इफेक्ट जब सिस्टम टर्न ऑन होगा, जब ये फैंस टर्न ऑन होंगे, तो जो ये फैंस की हवा इनके थ्रू जो जा रही है वो कूल होगी। दिस इज व्हाट द एयर कंडीशनर इज।
Now this system is which we have planned for the solar and battery, but the thing is when we have placed this solar, this we felt it is not enough and the battery is also not enough, because the thing is क्योंकि ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था। हमने जब ये बड़े सोलर और बैटरी का प्लान किया था, जब हमने सोलर और बैटरी ऑर्डर किए, बट ड्यू टू लॉकडाउन सोलर और बैटरी आ नहीं पाए थे, इसलिए हम लोग सोलर और बैटरी अरेंज नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी हमने ये सोलर हटाया नहीं, ये सोलर एज हम लोगों ने यहाँ लगा रखा है और हमने इसका कनेक्शन अभी हाल फिलहाल के लिए इस अडेप्टर से कर दिया है, डायरेक्ट कनेक्शन कर दिया है। जब ये सोलर बैटरी होता तो सोलर तो यहाँ था ही, एक सोलर के जो पाइप था और दूसरा यहाँ ये जो अडेप्टर के पाइप थे, ये डायरेक्ट पूरे सिस्टम को एक बैटरी से कनेक्ट हो जाता और सोलर का भी बैटरी से कनेक्ट हो जाता, वो पूरा सिस्टम एक सोलर बैटरी के ऊपर पूरा बेस्ड हो जाता। बट ड्यू टू लॉकडाउन सोलर और बैटरी का अरेंजमेंट नहीं हो पाया था, इसलिए हम लोगों ने इसको अभी हाल फिलहाल के लिए डायरेक्ट कनेक्शन कर दिया है। जब भी लॉकडाउन खुलेगा वैसे हम लोग सोलर और बैटरी का अरेंजमेंट करके इसमें सोलर और बैटरी ऐड ऑन कर देंगे। तो ये है पूरा सिस्टम। अभी मैं इसको आपको चला के दिखाता हूँ। ये आर्डिनो चालू हो चुका है पूरा। अब इसमें से ये पानी यहाँ से आ रहा है और ये एक्सेस ऑफ वाटर यहाँ पे निकल रहा है और ये टेराकोटा पाइप्स धीरे धीरे ये ऑलरेडी गीली है क्योंकि यहाँ पे पानी ऑलरेडी है, ठीक है, और ये एक्सेस ऑफ वाटर नीचे जा रहा है, बाकी सारे टेराकोटा पाइप्स ऐसे ही गीले होंगे। जैसे धीरे धीरे गीले हो जाएंगे, ये सारा कूलिंग इफेक्ट की वजह से जो एयर यहाँ से ब्लो हो रही है ये कूल होती चली जाएगी और ये एक एयर कंडीशनर की तरह बिहेव करेगा। फ्यूचर में इसका स्कोप अगर हम नीचे यहाँ पर टैंक लगा देंगे तो ये जो एक्सेस ऑफ वाटर जो नीचे जा रहा है ये उसमें कलेक्ट होता रहेगा और जो वो वाटर आउटलेट है जो ये है, ये भी एक यहाँ से एक पाइप लेके इसमें से इसको उस टैंक में जोड़ देंगे और जो पंप है हमारा वो भी उस टैंक में रहेगा। तो ये पूरा पानी रिसाइकल होता रहेगा ताकि कोई भी पानी का इसमें वेस्टेज ना हो और ये एक काफ़ी इफ़ेक्टिव एयर कंडीशनर साबित हो। सो ये था हम लोगों का प्रोजेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू।